ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہو سیاست.com۔ ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین، MBT اعظم پورہ کارپوریٹر جناب امجد اللہ خالد نے 2012 کی ووٹر لسٹ میں نئے ناموں کو درج کروانے کے تعلق سے الیکشن کمیشن آفیسر نوین متل کے بیان کے مطابق تفصیلات سے واقف کروانے کے لیے جناب امجد اللہ خالد اعظم پورہ کارپوریٹر کچھ معلومات اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے نئے ووٹرز جو 18 سال جو نئے ہوئے ووٹرز انرول کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے ایک مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس مہم کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں پر جو لوگ جن کے ووٹ نئے جو 18 سال کے ہوئے ان کے ووٹ نہیں آئے وہ لوگ جا کر ووٹ ڈال اپنا نام انرول کرا سکتے ہیں۔ دوسری چیز، اگر کوئی بڑے لوگ ہیں، کسی بھی عمر کے لوگ ہیں، ان کا نام اب تک ووٹر لسٹ میں نہیں آیا ہے، وہ لوگ بھی اپنا نام ووٹر لسٹ میں اندراج کرا سکتے ہیں۔ تیسری چیز، اگر آپ کے نام میں کوئی غلطی ہے یا آپ کے ایڈریس میں کوئی غلطی ہے، عمر میں کوئی غلطی ہے، والدین کے نام میں کوئی غلطی ہے یا یعنی بیوی یا شوہر کے نام میں کوئی غلطی ہے تو اس کو بھی آپ لوگ جا کر چینج کروا سکتے ہیں۔ نئے اندراج کرنے کے لیے ایک فارم 6 آتا ہے، وہ فارم 6 بھرتے ہوئے آپ اپنے قریبی جو بھی آپ کا پوسٹ آفس ہے یا آپ کا بلدیہ کا دفتر ہے، کسی بھی دفتر میں، کوئی بھی گورنمنٹ دفتر میں آپ جا کر جمع کر سکتے ہیں۔ اس مہم کے دوران 7 اکتوبر 2012 اور 21 اکتوبر 2012 کو پولنگ بوتھس پہ ڈیزگنیٹڈ سینٹرز بنائے گئے ہیں، جہاں پر آپ کے گھر کے سامنے جو بھی پولنگ بوتھ بنتا ہے وہاں پر آپ جا کر اپنا نام ہے یا نہیں ہے چیک کر سکتے ہیں۔ اگر نام نہیں ہے تو نام ڈلا سکتے ہیں، یا نام اگر غلط ہے تو کریکشن کروا سکتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا نام کسی دوسرے محلے میں رہتا ہے، لیکن جو لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں وہ لوگ اپنا گھر تبدیل کر دیتے ہیں۔ تبدیل کر دینے کی وجہ سے بھی بعض لوگوں کے موجودہ جو محلے میں آتے ہیں ان کا نام نہیں آتا، تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہے۔ اب یہاں پر صرف ووٹر لسٹ میں اندراج کی بات نہیں ہے، بلکہ آئیڈینٹی کارڈ بھی آپ کو 15 دن کے اندر بنا کے دیا جا رہا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسا ہی الیکشن کا اعلان ہوتا ہے، سیاسی پارٹیاں لوگوں میں نکل کے پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام ہے یا نہیں ہے، یا جو پولنگ کے دن خاص طور پر ہم جب کسی بوتھ پر جاتے ہیں تو سینکڑوں لوگ ہمیں گھیر لیتے ہیں کہ میرا نام نہیں ہے، میرے گھر والوں کا نام نہیں ہے۔ اور خاص طور پر ہم جو اولڈ سٹی کے لوگ ہیں یا خاص طور پر جو مسلمز میں ہے، یہ اس کا ایک ایجوکیشن نہیں ہے ووٹر لسٹ میں نام لکھانا یا آئیڈینٹی کارڈ۔ آج آئیڈینٹی کارڈ کی، ووٹر آئیڈینٹی کارڈ، ایپک کارڈ کی کیا اہمیت ہے۔ کسی کو پاسپورٹ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے تو جب اس کو یاد آتا ہے کہ میرا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہے یا میرے پاس آئیڈینٹی کارڈ نہیں ہے، اپنے بچوں کو ایڈمیشن کے لیے جب جاتے ہیں تو ان کو یاد آتا ہے کہ بچے کا نام ووٹر لسٹ میں ہے یا نہیں ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو دواخانے میں علاج کے لیے جب جاتے ہیں تو ان کو یاد آتا ہے کہ یعنی آج کے دور میں الیکشن آئیڈینٹی ایپک الیکٹرال فوٹو آئیڈینٹی کارڈ، اس کے معنی ایپک کارڈ کے معنی ہے الیکٹران فوٹو آئیڈینٹی کارڈ، ایپک کارڈ اس کا نام ہے۔ یہ آج ایک جیسا امریکہ میں یا کینیڈا میں ایک گرین کارڈ ہوتا ہے، دیکھیے آپ، شہریت کا کارڈ ہوتا ہے، اس سے بھی اہمیت کا کارڈ ہو گیا ہے۔ خاص طور پر آج کل حالات ایسے بگڑ رہے ہیں کہ چند دن پہلے میں خود دلی گیا تھا۔ دلی میں جب ہوٹل بک کرانے کے لیے میں گیا تو مجھے یہ پوچھے کہ آپ کے لیے کوئی فوٹو آئیڈینٹی کارڈ ہے تو بتائیے۔ میں اپنا انکم ٹیکس کارڈ بتایا یا کریڈٹ کارڈ بتایا تو وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرے کہ الیکشن کمیشن ایپک کارڈ اگر آپ کے لیے فوٹو آئیڈینٹی کارڈ ہے تو آپ کو یہ ہوٹل دینے پر راضی ہوئے وہ لوگ۔ اسی طریقے سے اگر آپ کوئی کسی ٹرین میں سفر کر رہے ہیں یا بس میں سفر کر رہے ہیں، اچانک سے چیکنگ ہو رہی، چیکنگ ہونے کے بعد میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس شہریت کارڈ ہے کیا، الیکشن کارڈ ہے کیا، تو الیکشن کارڈ آج کے دور میں بہت اہم ہو گیا۔ پہلے تو بہت مشکل تھا کہ لوگ جا کر نام داخل کرتے۔ کئی بار ایسا سابقہ میں آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ آپ لوگ کئی بار فارمز ڈالے لیکن آپ کا نہیں آیا۔ اس میں 2 ریزنز تھے کہ سابق میں جو فارمز ڈالے تھے 1986 میں بھی ایک ایسی مہم چلائی گئی تھی، 84 86 میں
90 में 94 में ऐसी मुहिम चलाई गई थी, लेकिन जो डाटा जल गया था, डाटा जल जाने की वजह से भी कई लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक एपिक कार्ड्स नहीं आए। और साबिका जो 2009 में इलेक्शंस हुए थे, जब भी लोग कुछ फॉर्म्स बना के डाले थे, फिर बाद में हालिया में जो 2011 में जो बल्दी इलेक्शन आए, 2010 में जो बल्दी इलेक्शन आए थे, उसमें भी लोग डाले नहीं आए। पिछले 10 मरतबा जो इलेक्शन हुए, यानी 2004 में इलेक्शन हुआ, 2006 में हुआ, 2009 में हुआ, 2012 में इलेक्शन हुए, कई लोग डाले लेकिन उनके नाम नहीं आए। इसमें यह है कि थोड़ी बहुत हमारी भी लापरवाही होती है। हम जब एप्लीकेशन देते हैं उसके लिए रिसिप्ट नहीं पूछते, और हम जाकर अगर बल्दिया दफ्तर में एप्लीकेशन करें तो भी लोग रिसिप्ट नहीं पूछते। कम से कम वो रिसिप्ट अगर रहा तो जाकर आप ऑफिसर से पूछ सकते कि भाई हम नाम डाले थे, नाम नहीं आया बोलकर। तो अहम चीज ये है कि अब जब आप जाएंगे फॉर्म भरेंगे, फॉर्म 6 भरेंगे, तो फॉर्म 6 में नीचे एक पट्टी रहती, जो भी ऑफिसर को आप दे रहे हैं उसका रिसिप्ट लीजिए। रिसिप्ट की अहमियत है। अब ये जो आने वाले 25 जनवरी 2013 को नेशनल वोटर्स डे मनाया जा रहा है। जिस तरीके से यौम आज़ादी 15 अगस्त को मनाई जाती, 26 जनवरी को 26 जनवरी मनाया जाता रिपब्लिक डे, या फादर्स डे, मदर्स डे, ऐसा चिल्ड्रंस डे मनाया जाता, टीचर्स डे मनाया जाता। तो हुकूमत ये वोटर्स में अवेयरनेस लाने के लिए 25 जनवरी 2013 के दिन वोटर्स डे मनाया जा रहा है। उनका एम ये है कि इस वोटर्स डे के पहले 25 जनवरी 2012 से पहले 99% हिंदुस्तान में वोटर लिस्ट को लोगों को वोटर्स एपिक कार्ड्स देना उनकी एक एम है। उसके अंदर हुकूमतें कोई भी कामयाब नहीं होती जब तक अवाम की तरफ से अगर अवाम आगे नहीं बढ़ी तो किसी हुकूमत की भी कोई पॉलिसी कामयाब नहीं होती। मैं आपके द्वारा इस सियासत चैनल के द्वारा मैं तमाम खास तौर पर पुराने शहर के लोगों से, जो ये जितने हैदराबाद या आंध्र प्रदेश जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड लोकेलिटी है, क्योंकि 2014 में जब इलेक्शन होएगा तो ये आने वाले दिनों में बहुत सख्त मुकाबला है, क्योंकि कहीं पर वाईएसआर पार्टी है तो कहीं तेलुगु देशम पार्टी है, तो कांग्रेस है, तेलंगाना के पार्टियां हैं। तो ये तमाम मुस्लिम वोट्स की अहमियत ऐसी हो जाएगी कि एक मुस्लिम वोट अगियार के 10 वोट के बराबर हो जाएगा। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पर मुसलमान 10% 12% भी है, तो इनका वोट जो रहेगा बैलेंसिंग वोट हो जाएगा। ये 10% मुसलमान वोट जिसको भी देंगे तो वो उम्मीदवार जीतेगा। तो मैं बार बार इस बात पे क्यों वजन डाल रहा हूं कि आप अपना नाम लिखाइए, एपिक कार्ड बनाइए, क्योंकि आप बादशाह घर के मौकूफ में बनेंगे। आंध्र प्रदेश का मुसलमान जो रहेगा बादशाह घर के मौकूफ में आ जाएगा, और आंध्र प्रदेश में जो जमात ज्यादा एमपीस लाएंगी वो हिंदुस्तान में इख्तिदार पे आएंगी। अब जैसा कि साबिका में राजशेखर रेड्डी साहब जब 2009 में आउट ऑफ उनके जो 30 एमपीस थे, 29 एमपीस का 26 एमपीस कांग्रेस ले जाने की वजह से ज्यादातर उनका वेट था। कांग्रेस में यूपीए की गवर्नमेंट में भी उनका वेट ज्यादा था। और एक हमारे लिए खुशखबरी की बात यह है कि ई सेवा सेंटर्स जो है शहर में 29 डेजिग्नेटेड ई सेवा सेंटर्स है यहाँ पर हमारे हैदराबाद में खास तौर पे। इसमें भी फॉर्म ले रहे हैं। आप जाकर किसी भी ई सेवा सेंटर में आप अपना फॉर्म इंदराज करके वहां पर आप लाइन में ठहर के ई सेवा वाले को अगर बोले कि मैं अपना नाम वोटर लिस्ट में डालने के लिए आया हूं, तो वो लोग भी ले रहे हैं। 15 दिन के अंदर ई सेवा सेंटर में आप जब भी रिसीव करेंगे, आप वो फोन नंबर जो देंगे आपको इमीडिएट एसएमएस आएगा ई सेवा से कि यू हैव बीन एनरोल्ड एज ए वोटर, या आपका एपिक कार्ड का ये नंबर है, इट विल बी डिलीवर्ड इन 15 डेज बोलकर। साबिका में जो गलतियां हुई अवाम की तरफ से हुए, ओहदेदारों की तरफ से हुए कि बास पोस्टमैन को कार्ड दे दिए, पोस्टमैन सही नहीं बांटे, बास कार्ड बल्दिया के टैक्स इंस्पेक्टरों को दिए। 2009 के इलेक्शंस में तो कई कार्ड बल्दिया की तरफ से मिसयूज हुए। मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन को, हमने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को कई मरतबा कहा, एक सियासी जमात के जो पुराने शहर की सियासी जमात है, ये लोग क्या किए कि इनके मुखालिफिन के घरों तक वोट एपिक कार्ड नहीं पहुंचना बोलकर जाके जो जोनल ऑफिस है, एडिशनल कमिश्नर इलेक्शन है या जोनल कमिश्नर की ऑफिस है, वहां से बल्क में पुराने शहर की एक सियासी जमात के एमएलए, उनके एक्स कारपोरेटर्स, उनके सियासी वर्कर, वो पूरे कार्ड्स उठा लिए। वो लोग उठा के भी कई
कई लोगों को नहीं दिए। इसमें भी कई कार्ड्स मिस हो गए ओल्ड सिटी के लोगों के। वो लोग ये समझे कि इनके मुखालिफिन करें या आवाम तक कार्ड पहुंचेंगे, आवाम निकल के वोट डालेंगी, तो ये खौफजदा थे कि कहीं इलेक्शन में हम हार जाएंगे। तो इस साजिश को इस बार भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका कार्ड 15 दिन के अंदर आपके नहीं आया तो आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन जो कंप्लेंट है www.ceoandhra.nic.in, आप सियासत की वेबसाइट पे भी देखिए, इसमें एक स्पेशल मुहिम चलाई जा रही है अखबार सियासत की तरफ से। या आप चीफ इलेक्शन कमीशन गूगल पर जाकर, जो पढ़े लिखे तबका है, आजकल तो हर नौजवान इंटरनेट पे रहता है, मेरी खुसूसी अपील उनसे है, क्योंकि आप गूगल पे जाकर अगर आप एपिक कार्ड मारे या आंध्र प्रदेश इलेक्शन कमीशन मारे या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मारे तो आपको वेबसाइट खुल जाती है, उस पर आप ऑनलाइन भी डाल सकते हैं। कई टेलीफोन कॉल जब से मुहिम चालू हुई मुझे NRIs की तरफ से, जो लोग हैदराबादी है, जॉब के सिलसिले में सऊदी या गल्फ में है या अमेरिका में है, किसी भी दुनिया के मुकाम पे है, आप कहीं भी दुनिया के किसी भी मुकाम पर से रहते हुए भी आप अपने आप को एज ए वोटर एनरोल कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन आप एप्लीकेशन दीजिए। आपको ऑनलाइन आप जो ईमेल आईडी देंगे या आप टेलीफोन नंबर देंगे, आपको उस पर डिलीवर किया जाएगा। वो उस कार्ड को आप जेरॉक्स निकाल कर उसको लैमिनेट कराइए, आपका वो एपिक कार्ड बन जाएगा। तो हुकूमत की तरफ से कई सहूलतें दी जा रही है। ई सेवा में आप दे सकते हैं, बल्दिया दफ्तर में दे सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में दे सकते हैं, किसी बैंक में जाकर आप वहां पर फॉर्म 6 लेकर आप दे सकते हैं। अगर अब कोई ये बात कहेगा कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, मुझे एपिक कार्ड नहीं आया, तो ये इसमें आप इसके जिम्मेदार रहेंगे। तो मेरा मुतालबा है कि आप लोग जाकर इसका फायदा उठाए 31 अक्टूबर से पहले। और याद रखिए कि ये वो तारीख ऐसी नहीं है कि आप सोचेंगे कि भाई हुकूमत हमेशा एक कट ऑफ डेट ऐलान करती फिर बाद में उसकी तारीख बढ़ाई जाती है। तकरीबन लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे कि भाई 31 अक्टूबर को अभी टाइम है। अक्सर ऐसा होता, पोलिंग के दिन भी हम वोट डालने के लिए सुबह नहीं निकलते, ये सोचते कि आधे घंटे के बाद जाएंगे ना 1 घंटे के बाद जाएंगे। आप गए जब तक आपका वोट चले जाता या कोई और डाल देता, ऐसी भी कई घपले होते हैं। तो ये जिस तरीके से आप जब भी ये सुने इमीडिएट ये फैसला करिए कि कल सुबह में आप जाकर चेक करें। अगर ये समझ रहे हैं कि मेरे जेब में कार्ड है, मेरे कहने बाज़ वक़्त तो ऐसा होता है कि जब लोग वोट डालने के लिए लाइन में आते हैं तो उनके जेब में कार्ड रहता, एपिक कार्ड रहता, लेकिन वहां पर लिस्ट में नाम नहीं रहता। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये वोटर की जिम्मेदारी है, ये किसी सियासी लीडर की या MLA, MP, कारपोरेटर या बल्दिया ओहदेदार की या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है। ये अवाम की जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये वोटर की जिम्मेदारी है कि आप जाकर देखें। वहां पर आप खुद जाकर देखना कि आपका नाम है या नहीं है। आप अपना नाम चेक करने के लिए ऑनलाइन भी चेक कर सकते। आप जाकर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ आंध्र प्रदेश के वेबसाइट पे जाकर भी आप चेक कर सकते। इसमें एक और एक सहूलत ये दी गई कि यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। आप इसे टोल फ्री नंबर पे भी आप कॉल करके आप मालूम कर सकते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है। मैं उस टोल फ्री नंबर का 1950, अगेन आई एम रिपीटिंग 1950, ये टोल फ्री नंबर है। ये टोल फ्री नंबर पे आप 1950 पे मिलाकर सुबह 8 बजे से शाम में 8 बजे तक आप अपना डोर एड्रेस बोले तो आपको गाइड करता, आपका नाम है या नहीं है वो चेक करके बोल सकता, आपका फोटो है या नहीं है वो भी बोल सकता। अगर किसी की फोटो भी चेंज कराना है तो वो लोग करा सकते हैं।